MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, today we will discuss about alkanes. Yesterday, I have discussed about alkanes and alkynes, the general introduction I have given. And today I will discuss about the preparation method of alkanes. Students, as you know, alkanes having the general formula CnH2n plus 2, and it depends on the value of n. So if n is equal to 1, then there will be a formula CH4. If n is equal to 2, then formula will be C2H6. If n will be 3, then C3H8. Simple mathematics. You have to put the value of n here. After this, n value here. So C1H 2 into 1 plus 2 is CH4. That is in the case of our first. Second is C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, like this. And what you are observing actually, here the value of n is changing only. N is equal to 1, then it will be CH4. N equals to 2, then it will be C2H6. N equals to 3, C3H8. And what you are observing, there is continuous addition of CH2 group. CH2 group at the bottom. Here you see CH4 plus CH2, simple addition. Then it will become C2H6. After this again CH2 addition, C3H8. Then again C4H10, CH2 addition, C5H12, again CH2 addition. The process of continuing addition of CH2 group downline the series is known as homologous series, and the compound which is formed is known as homologous compounds. Is it clear to everyone? CH2 का एडिशन कर रहा हूं, n equal to 1, n equal to 3, ये इसके हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. आपको कल मैंने बताया था कि अगर कार्बन की वैल्यू 1 होगी then it will be meth. If it is alkane, then we have to write methane. So the name is methane here. Second is 2 carbon for ethane, 3 carbon propane, 5 carbon pentane, 6 carbon hexane, 7 carbon heptane, 8 carbon octane, nonane, decane. Like this you have to follow. CH2 का addition will be a homologous series. Students, now we will discuss about the method of preparation of alkanes. So, see here, first of all, we will discuss about the sources of alkanes. Alkanes found in natural gas and the petroleum. This is the main source of alkanes. Natural gas, you know, methane. It is used in the CNG also, which is known as compressed natural gas. If we talk about alkanes, there are so many members, we have discussed about C1 to Ca. So if we talk about C1, that is methane, is a gas. C2 is a gas again, ethane. C3 propane is a gas again. C4 butane is a gas again. This is the physical property of alkane. The first 4 members are gases, and next 13 members are colorless liquids. And after this, C18 onwards, they are waxy solids. So is it clear to everyone? If I talk about the physical property of alkanes, then the initial members are gaseous in nature. After this, the next 13 members, first 4 members are gaseous in nature, next 13 members are liquids, and after this they are waxy solids. And if I talk about CNG, compressed natural gas, उसमें क्या होता है? इसमें मीथेन होता है. If I talk about LPG, liquefied petroleum gas, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपका यही होता है, प्रोपेन रहता है, इथेन रहता है, और आपके कुछ ट्रेसेस ब्यूटेन के भी रहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है और कितना ज्यादा जनरल हमारी लाइफ के अंदर यूज हो रहा है. क्योंकि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी बेसिक लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अब मैं डिस्कस करता हूं आपको एल्केन्स के नेचर के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर. जनरली जो एल्केन्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं. और हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर. लेकिन तो फिर ये सॉल्युबल किस में होंगे? ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रहते हैं.
तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आप सब लोगों को पता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, इसके अलावा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो जाता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो जाता है। ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर ये डिसॉल्व होते हैं। यूजुअली दे यूज टू प्रोसेस द फंडा ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फंडा है कि वो उसके साथ ही डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्केन। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट व्हिच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सो हियर यू सी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड रहता है और एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड रहता है। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं मेरा जनरल फॉर्मूला, मैं अगर बात करता हूं इथेन की, तो आप लोगों को कल मैंने जनरल फॉर्मूले बताए थे। CnH2n+2 इज फॉर एल्केन्स, CnH2n इज फॉर एल्कीन एंड CnH2n-2 इज फॉर एल्काइन। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, माइनस का मतलब क्या माइनस हो रहा है, हाइड्रोजन माइनस हो रहे हैं। हाइड्रोजन माइनस हो रहा है तो वैलेंसी तो कार्बन की सेटिस्फाइड करनी है, तो क्या लगा रहे हैं हम, डबल बॉन्ड लगा रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं, यहां पे आप देखिए, तो यहां पे जैसे हमारे पास ये कार्बन है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, मैं C2 की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर मेरे कितने कार्बन लगेंगे, अगर 2 कार्बन की बात करता हूं, हाइड्रोजन कितने लगने वाले हैं, सिर्फ 6। कैसे कैसे लगने वाले हैं, 1 2 3 1 2 3, इट विल बी 6। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे होगी, सॉरी इसके अंदर से अगर हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे होगी, वो होगी डबल बॉन्ड से। उससे क्या बन जाता था, एल्कीन्स बन जाता था। तो यहां पे आप देखिए, अब मेरे पास जनरल फॉर्मूला था CnH2n, मतलब C2 है और H 2 into 2 विल बी 4, तो C2H4। अभी मेरे पास यहां पे अभी सिंगल बॉन्ड ही लगा रहा हूं, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 1 2, लेकिन अभी जरूरत किस चीज की है मेरे को, कार्बन की वैलेंसी तो 4 नहीं हुई, तो कार्बन की वैलेंसी करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से इसके अंदर से हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तो डबल बॉन्ड लग जाता है, तो डबल बॉन्ड के अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो क्या वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और डबल बॉन्ड फिर उसके अंदर और हाइड्रोजन ऐड होंगे तो वो फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, हमें ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, और हमारा मेन मोटिव क्या है, एल्केन है, एल्केन के अंदर कैसा रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी मैंने ये ऑर्डर ऐसे करके दिखाया, अब हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है। कैसे आना है, यहां देखिए, हाइड्रोजिनेशन, नाम से समझ में आ रहा, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस कैसे होगा, उसके लिए कुछ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। कैटलिस्ट कौन सा है, निकल कैटलिस्ट है हमारे पास, प्लैटिनम है और पैलेडियम है। ये कैटलिस्ट हैं जो कि हमें हाइड्रोजन को ऐड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। टेम्परेचर की कंडीशन कितनी है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर निकल कैटलिस्ट, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट ऐड करना है, और टेम्परेचर कितना, 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब हम रिएक्शन पे आते हैं जो कि हमारा मेन फंडा था। देखिए यहां पे एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहां पे R लगा हुआ है। R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है। वो एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, ये तो एल्केन था और यहां पे ये एल्काइल है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ये सारे एल्काइल ग्रुप है। तो सपोज मैं अभी R के साथ ही चलता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड क्यों लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, तो इसके लिए यहां पे डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं निकल कैटलिस्ट है। निकल कैटलिस्ट ने क्या किया, यहां पे इसके अंदर एडिशन किया हाइड्रोजन का। यहां पे टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल था, हमने 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर यहां पे मेंटेन करके रखा। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहां पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो उसके साथ हमें क्या हो जाएगा, इधर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके साथ एडिशन हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो यहां पे क्या कंपाउंड बन गया, RCH2CH3। अभी इसको एक और एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। R की जगह मैंने CH3 ले लिया, यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो इसकी नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। अभी मैं इसको भी पूरा का पूरा बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। 1 2 3 हो गया, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्रोप। और फिर उसके बाद पहली पोजीशन पे है 1 और इन, क्योंकि ये एल्कीन है तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज देयर,
हाइड्रोजन का एडिशन किया, इसके अंदर क्या डाला, निकल कैटलिस्ट मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसे हीट किया कितने डिग्री सेल्सियस पे, 200 से 300 डिग्री पे। जहां पे हाइड्रोजन की कमी है वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन की कमी कहां पे दिख रही है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। अब यहां पे देखिए आप CH3, यहां पे CH था तो ये CH2 हो गया, यहां पे CH2 था अगेन तो ये CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड हट जाएगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है इधर से भी और इधर से भी। इधर डबल बॉन्ड ने कर रखी थी, इधर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पहली रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो डबल बॉन्ड का एग्जांपल हुआ। अब ट्रिपल बॉन्ड का देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन आप यहां पे देखिए कार्बन की वैलेंसी से मतलब है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, हाइड्रोजन यहां पे एक और नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2। हाइड्रोजन का एडिशन, तो यहां पे आप देखिए CH सबसे पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो R, फिर यहां पे क्या जुड़ेगा CH, वही वाली सेम रिएक्शन आ जाएगी एल्कीन वाली, CH2 और CH2। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड्स जो हैं, एल्काइल जो ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। वो जो डॉट है वो डॉट X है, X क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो। यहां पे आप देख सकते हैं ये हैलोजेंस है, ये हमारा X है, और R क्या है हमारा CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद अब मैंने एग्जांपल लिया रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सब लोग जानते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे अब रिडक्शन कैसे होगा, ऊपर हमने क्या डाला था, हमने एडिशन जब हाइड्रोजन का होना था तो उसके अंदर निकल कैटलिस्ट डाला, प्लेटिनम डाला, पैलेडियम डाला। यहां पे भी कुछ रिएजेंट्स की जरूरत होगी, तो कौन कौन से रिएजेंट्स है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक और कॉपर कॉम्बिनेशन में अलोंग विद इथेनॉल। तो ये हमारा कुछ कंपाउंड्स हैं जिसके थ्रू हम रिडक्शन कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसेस है, यहां पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी। यहां पे जो X ग्रुप है ये इस H के साथ मिलके एक H यहां पे निकाल के ले जाएगा और इस H को इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहां पे RX था, दो H थे, एक H तो लग गया R के साथ और एक X जो था वो H के साथ बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं CH3Cl, CH3 क्या है यहां पे, मिथाइल क्लोराइड। तो यहां पे मिथाइल क्लोराइड की जब हमने रिडक्शन किया, किसकी प्रेजेंस में किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो इसने क्या दे दिया CH3H। CH3H समझ रहे हैं कि एक एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, तो 3 जो था वो 4 में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा कंपाउंड अब क्या बन गया, एल्केन बन चुका है, विच इज CH4। तो यहां पे CH4 हमने जोड़ दिया और वापस क्या निकल गया बाहर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। किसकी प्रेजेंस में निकलेगी, वहां पे एक रिएजेंट दे रखा है सोडा लाइम। कौन सा रिएजेंट है, सोडा लाइम, CnOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे दे रखा है NaOH प्लस CaO जो कॉम्बिनेशन है ये सोडा लाइम कहलाता है। ये फॉर्मूला है, पूछा भी जा सकता है आपसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे आप देखें ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOONA। R क्या, एल्काइल ग्रुप, लेट्स से इट इज CH3, CONA सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोएट, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब R की जगह अगर मैं CH3 लेता हूं तो CH3 मतलब CH3 और C 2 कार्बन हो गए, तो इसका मतलब 2 कार्बन है तो इथा आएगा। कार्बोक्सिलेट आयन है तो उसके लिए इथेनोएट लिखना पड़ता है, तो सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगी। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर से सोडियम यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन है, उसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। और जब Na2CO3 पूरा बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग कंपाउंड क्या बचेगा, CH3H। R CH3 अभी मैंने लिया था, इसकी जगह ये C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5, ये आगे ऐसे कंटिन्यूएशन में ऐड हो सकता है, हम कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूं, स्टूडेंट ये सारी की सारी चीजें यूज आएंगी कन्वर्जन में। कन्वर्जन क्या है, सपोज क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन।
आप लोगों के माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरे को इसके अंदर क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है। अभी स्टूडेंट इसका वर्ड होगा डिहाइड्रोजनेशन, तो इसका मतलब रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब इसका अगर मैं डिहाइड्रोजनेशन कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं तो एल्केन बन रहा है। सेकंड उसके अंदर देखिए आप, यहां पे एल्काइल हैलाइड था, सपोज करो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से आपको मीथेन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर रिडक्शन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन ऐसे होते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन एक और डिफरेंट पॉइंट से आते हैं कि आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने, यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के अलग तरीके हैं, वो मैं अभी आपको एक मेथड यहां पे भी आएगा उसको डिस्कस करूंगा, और नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने के भी मेथड है। स्टूडेंट्स ये 4-5 मेथड्स हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो यू शुड नो द बेसिक्स एक्चुअली, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। सपोज करो आपको प्रोपेन से इथेन बनाना है, तो यू शुड नो द बेसिक्स। अगर मैं इंक्रीज करने वाले बोलूं तो इंक्रीज करने वाले मैं अभी 2 मेथड यहां पे यूज करने वाला हूं, वो है एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा जो मेथड है वो है हमारा वुड्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर पढ़ते हैं हम। सब डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन में आप देख चुके हैं, ये एक कार्बन को रिड्यूस करने वाली टेक्निक है। कैसे है, यहां पे आप देख सकते हैं CH3CONA, मतलब 2 कार्बन थे और एंड प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है, एक सिंगल कार्बन मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता हाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन, तो सिंपल आंसर इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम इज योर आंसर। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला इज RMgX। R इज योर एल्काइल ग्रुप which is CH3, कुछ भी हो सकता है, Mg is magnesium metal and X is your halogen, it may be Br। तो CH3MgBr, यहां पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अभी, यहां पे RMgX प्लस हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में आप देख सकते हैं ये जो MgX है और ये जो OH है, ये एक अलग प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, लिविंग बिहाइंड RH and MgXOH। So it will give you a compound which is again alkane. So again this is one of the method by which we can prepare alkane. How to prepare alkanes from Grignard reagent? It is simply by the hydrolysis process. So CH3MgBr plus water, it will give you CH3H and MgBrOH. I think ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं वुड्स रिएक्शन पे। स्टूडेंट व्हाट इज वुड्स रिएक्शन एक्चुअली? Here you see this is alkyl halide, यहां जो हमने यूज किया था alkyl halide। Alkyl halide, when alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, तो it will give you what? It will give you higher alkane। अभी मैंने ऊपर मेथड बताया नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने का, और ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का मेथड है। कैसे इंक्रीज हुआ, यहां देखिए, RX is your alkyl halide, this is sodium metal। सोडियम मेटल आपको पता बहुत रिएक्टिव होता है, तो प्रिकॉशंस भी इसके लिए चाहिए होती हैं कि इसको कैसे रखना है। और अगेन दिस इज वन मोर मोइटी RX। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 2 सोडियम मेटल, ये एक हैलोजन, ये एक हैलोजन, ये बाहर निकल रहा है 2NaX, एंड लिविंग बिहाइंड दिस R एंड दिस R, दिस इज योर हायर एल्केन। तो यहां पे 2 एल्केन्स बन चुके हैं, और ये जो 2 एल्केन बन चुके हैं मतलब हमारी कार्बन की चेन इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट इसके साथ एक लिमिटेशन है, ये 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, ये इस उसमें बढ़ाएगा, इवन नंबर में बढ़ाएगा। अगर हमें 2 के 3 चाहिए, 3 के 4 चाहिए, 4 के 5 चाहिए, मतलब ओड नंबर में भी तो बढ़ सकते हैं ना। ऐसे जरूरी थोड़ा है कि इथेन से ब्यूटेन ही बनाना है, तो उसको कैसे करूंगा मैं, उसके लिए अलग से मेथड यूज किया जाता है, कोरे हाउस सिंथेसिस है वो यूज की जाती है। तो यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं हम, CH3Br प्लस सोडियम मेटल, फिर अगेन CH3Br ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुआ CH3 एंड इट विल गिव यू 2NaBr एज अ जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट इज Kolbe synthesis। अगेन Kolbe synthesis, सोडियम salt of fatty acid when treated with water, it will give you RR, which is your again higher alkane plus carbon dioxide plus NaOH plus hydrogen। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने जहां पे R लिखा है, आप लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है, R की जगह आपको सारे के सारे अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स लेने हैं। एल्काइल ग्रुप कौन कौन से, एटलीस्ट 5 तक जरूर करना। CH3 के साथ मैंने सबका करके दिखाया है, आप इथाइल के साथ करना, प्रोपाइल के साथ करना, ब्यूटाइल के साथ करना, पेंटाइल के साथ करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको सिर्फ एक प्रिपरेशन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। देखिए किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन मेथड एज एन कन्वर्जन यूज हो सकता है किसी दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में।
अभी सपोज करो मेरे को जब आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाना होगा, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, यहां पे एल्केन की ये प्रिपरेशन मेथड है ना। तो जब आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होगी एल्कीन की, तो ये किसी ना किसी कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी दूसरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है। कैसे? एल्कीन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये एल्केन बनाता है। जब हम एल्कीन पढ़ेंगे तब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको अच्छे से पहले से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जब एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पता है रिडक्शन के बाद ये एल्केन देता है। नेक्स्ट यहां पे देखिए, यहां पे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है तो ये एल्केन बनाता है। तो दिस इज वन ऑफ द इजी वे। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे एक कंपाउंड से आप 2-3 कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को, अब देखिए मैंने सिर्फ एल्केन बताया आपको, लेकिन एल्केन से आपको एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एल्काइल हैलाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक क्लियर हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी एक क्लियर हो गई, और साथ में एल्काइल हैलाइड की ये एक और मेथड आ गया कि जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टी वाला, और ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लास में भी यही बताया था कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बहुत आसान बना दूंगा और आपको सारे की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। लेकिन आपको वीडियो को बस अंत तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें डिस्कस करूंगा, तो स्टे ट्यून। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो रह ना जाए जिससे कि आपको बाद में फिर लगे कि ये वीडियो भी मेरे पास आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।